روزہ رکھنے کے شوق میں رہتا ہے اور اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو اس گھر میں خوشحال ریشن ویڈیو کے ناظرین دیکھنے والے اور سننے والے السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت اچھی ویڈیو ہے، بہت پیاری ویڈیو ہے رمضان کے بارے میں۔ ویڈیو ہے 5 لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دے رہے ہیں، تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ ان بدبخت لوگوں کی نماز تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ فقیر اللہ والے کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا، او نادانو، مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ بندہ مومن ہو فجر کی نماز چھوڑ دے؟ اللہ والے، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، ان دونوں کی تیرے ساتھ کیسے صلح ہو گئی؟ اس اللہ والے نے کہا، شیخ سعدی، رمضان سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے کوشش کرنا اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے کر لینا، کیونکہ جو شخص رمضان کا منتظر رہتا ہے، روزہ رکھنے کے شوق میں رہتا ہے اور اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو اس گھر میں خوشحالیاں بانٹنے والے، رزق بانٹنے والے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں مقیم رہتے ہیں۔ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے مقیم رہتے ہوں، رزق بانٹنے والے فرشتے مقیم رہتے ہوں اور خوشحالیاں بانٹنے والے فرشتے مقیم رہتے ہوں، وہ گھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے مقیم نہ رہتے ہوں، وہ گھر شیطان کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت، مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ وہ کون سے گناہ ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد کے سجدے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے، تہجد کے سجدے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ ان بدبخت لوگوں کی نماز تہجد بھی قبول نہیں ہوتی اور ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، میرے نبی نے فرمایا تھا، 5 گناہ ایسے ہیں اور یہ 5 گناہ کرنے والے 5 آدمی ایسے ہیں، 5 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کے سجدے قبول نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک بالشت یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بالشت بنتا ہے، ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، پہلے آسمان تک پہنچنا تو رہی دور کی بات، دوسرے آسمان تک پہنچنا تو رہی دور کی بات، 7واں آسمان کی بلندی پر جانا تو رہی دور کی بات، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ مجھے بتاؤ، جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی نماز قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی، ان کی
कोई और इबादत कबूल होती होगी? उनका रोजा कबूल होता होगा, उनकी तहज्जुद कबूल होती होगी, उनके सजदे कबूल होते होंगे, उनकी कोई और इबादत कबूल होती होगी? हालांकि नमाज तमाम इबादत में से अहम इबादत है, अल्लाह ताला की पसंदीदा इबादत है। इसी नमाज के बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज गिरा दी उसने दीन को गिरा दिया। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। मोमिन नमाज पढ़ता है, अल्लाह के हुजूर झुकता है, इसलिए तो वो मोमिन है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता, सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ता, सुबहान रब्बियल अजीम की तस्बीह नहीं पढ़ता, इसलिए तो वो काफिर है। सहाबा किराम के दौर में जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता था और जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता था, सहाबा किराम कहते थे ये तो है ही मुनाफिक। बंदा मोमिन हो फजर की नमाज छोड़ दे, बंदा मोमिन हो इशा की नमाज छोड़ दे। एक उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे। उस्ताद ने सवाल किया, पूछा, बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह के हुजूर अपना सर नहीं झुकाते? एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, कहने लगा, उस्ताद जी जो लोग काफिर हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा कोने से खड़ा हुआ, कहने लगा, उस्ताद जी जो लोग मर चुके हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे कोने से एक बच्चा खड़ा हुआ, तोतले लहजे में कहने लगा, उस्ताद जी जिनको नमाज नहीं आती वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो जवाब देकर फारिग हो गए। उस्ताद सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरा शुमार किन लोगों में होता है। उस्ताद सर पकड़ के बैठ गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरा शुमार किन लोगों में होता है। क्या मैं काफिर हूं जो नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं मोमिन नहीं हूं जो नमाज नहीं पढ़ता? क्या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता? और क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज नहीं पढ़ता? एक फकीर था, अल्लाह वाला था, उसने किसी जनाजे में शिरकत की। जनाजा पढ़ने के बाद जब मैयत को दफन करने लगे, तदफीन करने लगे, तो उस फकीर ने, अल्लाह वाले ने अजीज व अकारिब से पूछा कि अगर ये मरने वाला दोबारा दुनिया में आ भी जाए, पलट कर आ भी जाए, तो अब ये क्या करना पसंद करेगा? तो किसी ने कहा, जी ये इस्तगफार करना पसंद करेगा। किसी ने कहा अब ये कुरान पढ़ना पसंद करेगा, अब ये तौबा करना पसंद करेगा, अब ये अपने किए पर रोना पसंद करेगा, अल्लाह के हुजूर पुख्ता तौबा करना पसंद करेगा, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना पसंद करेगा, नमाज पढ़ना पसंद करेगा, इस्तगफार करना पसंद करेगा। ये सुनकर फकीर अल्लाह वाले की चीख निकल गई, रो कर कहने लगा, ओ नादानो, मरने वाला तो ये काम नहीं कर सका, तुम जरूर कर लेना। मरने वाला तो नमाज नहीं पढ़ सका, तुम जरूर पढ़ लेना। मरने वाला तो रोजा नहीं रख सका, तुम जरूर रख लेना। मरने वाला तो कुरान नहीं पढ़ सका, तुम जरूर पढ़ लेना। पूछा गया, वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से नमाज कबूल नहीं होती? जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता तब तक जब तक वो लोग पक्की तौबा नहीं कर लेते। फरमाया, पहला शख्स सूद खोर इंसान, सूद का कारोबार करने वाला, सूद का बिजनेस चलाने वाला, सूद के कारोबार से अपनी औलाद को हराम का लुकमा खिलाने वाला, हराम का रिज़्क खिलाने वाला। कभी भी अपनी औलाद को हराम का लुकमा ना खिलाना, औलाद के मुंह में हराम का लुकमा मत डालना, वरना याद रखना तुम्हारी औलाद की आंखों से ये हराम का लुकमा हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। तुम औलाद के हाथों रुसवा हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जलील होते नजर आओगे। फिर क्या होगा? यही औलाद जिनको तुमने हलाल और हराम की तमीज किए बगैर कमाया, खिलाया, पिलाया, जब ये बड़ी होगी कोई इस तरह का करतूत करेगी, इस तरह का गुनाह करेगी, इस तरह की घटिया हरकत करेगी कि इन्हीं की घटिया हरकत की वजह से तुम्हारी इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले रूंधी जाएगी। तुम्हारी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के रख देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सर उठा के चलने वाला बाप कहीं उसका औलाद की वजह से सर झुक भी ना जाए।
इसलिए कोशिश करना अपनी औलाद को हलाल का लुकमा कमा कर खिलाना। आज कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद की आंखों में हया कोई ना हो, औलाद की आंखों में गैरत ना हो। दूसरा गुनाह, दूसरा शख्स शिर्क करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, इसका रोजा कबूल नहीं होता, हज ज़कात कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये अल्लाह से पक्की तौबा नहीं कर लेता। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा शिर्क से बचना, शिर्क तुम्हारी नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। आज आप देखते नहीं है, जब हम औलिया किराम के मज़ार पर जाते हैं, अल्लाह के नेक लोगों के मज़ारात पर जाते हैं, फातिहा पढ़ने के बजाय, उनके दराजात की बुलंदी की दुआ मांगने के बजाय, उनका वसीला मांगने के बजाय, वो अल्लाह के नेक लोग थे, अल्लाह के महबूब लोग थे, उनका सदका मांगने के बजाय हम उनके आगे अपना सर झुकाए बैठे होते हैं, हम मज़ार को सजदा कर रहे होते हैं। ये शिर्क नहीं है तो क्या है? सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को किया जाए, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना और किसी के आगे नहीं झुकना। अदब अपनी जगह पे है, एहतराम अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे है। मैं कहता हूं जब भी मांगना अल्लाह से मांगना और मुस्तफ़ा करीम का सदका मांगना। मुस्तफ़ा करीम का सदका मांगने से क्या होगा? मांगने से पहले पहले ही अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। रब को पाने की कोशिश करो जवानों, जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने किसी अल्लाह वाले को देखा, वो चीते के ऊपर सवार था और उसने एक सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था, चीते के ऊपर सवार था। जब मैंने देखा तो हैरान रह गया, दंग रह गया कि चीता भी इंसान का दुश्मन और सांप भी इंसान का दुश्मन, इन दोनों की इंसान के साथ कैसे सुलह हो गई? मैंने उस अल्लाह वाले से पूछा, वो अल्लाह वाले, चीता भी इंसान का दुश्मन है, सांप भी इंसान का दुश्मन है, इन दोनों की तेरे साथ कैसे सुलह हो गई? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, शेख सादी, जब से मैंने अल्लाह से सुलह की, इन्होंने मुझसे सुलह कर ली। जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती की, इन जानवरों ने मुझसे दोस्ती कर ली। फरमाया रब को पाने की कोशिश करो, जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। सुनो, रब के इश्क में, मदीने वाले की मोहब्बत में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है। तीसरा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, वो है वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन को दुख देना, वालिदैन को दर्द देना, वालिदैन की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाना। ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला का नापसंदीदा गुनाह है। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की तरफ से कहर पड़ता है, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब बरसता है, जो वालिदैन की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाते। इसलिए कोशिश करना, कोई ऐसी घटिया हरकत मत करना, कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम मत देना कि तुम्हारे काले करतूत की वजह से, तुम्हारी घटिया हरकत की वजह से तुम्हारे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी, इज्जतदार बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले न रूंधी जाए। फरमाया चौथी, ऐसी औरत जो इस हाल में रात गुजारे, इस हाल में रात गुजारे कि उसका शोहर उस पर नाराज हो, उसका शोहर उस पर खफा हो, ऐसी औरत की नमाज भी कबूल नहीं होती तब तक जब तक वो अपने शोहर को राजी नहीं कर लेती। मियाँ बीवी के दरमियान बात हो जाती है, तलख कलामी हो जाती है, इख्तलाफात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है। फरमाते हैं रात के आने से पहले पहले ही सुलह कर लो, रात के आने से पहले पहले ही ये नफरतें, ये कदूरतें खत्म कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पूरी रात अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बने रहो। इसलिए मैं कहता हूँ नफरतों को काट दो, नफरतें मिटाओ, मोहब्बतें बढ़ाओ, नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें बढ़ाओ। अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब लोग करीम आका की गरीब उम्मत से प्यार करेंगे तो करीम आका को कितने अच्छे लगेंगे। और फरमाया पांचवा गुनाह, गीबत करना। गीबत करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, क्योंकि गीबत अल्लाह ताला का बहुत ही नापसंदीदा अमल है। वहां की सुनकर यहां लगाना, यहां की सुनकर वहां लगाना, फिर दोनों भाइयों को, दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना, लड़ा के फिर तमाशा देखते रहना। सुनो, वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त करीब रहता है, लेकिन रमजान के महीने में और ज्यादा करीब हो जाता है।
وہ کس طرح قریب ہو جاتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور دنیا کے لوگوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں ان کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج میں ان کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، آج میں ان کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو باقی ویڈیو کی طرح بہت پسند آ جائے گی۔ اگر اچھی لگی تو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔